Hello friends, welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IAS Network. Today is day 16 and today we will be covering the last portion from Indian agriculture, that is food processing sector. So we already covered many topics from agriculture, that is from paper 3. We have covered APMCs, we have covered agriculture marketing, under that we covered APMCs, and then we have also discussed PDS mechanism, MSP mechanism, then we discussed livestock sector, then we also discussed few miscellaneous kind of topics in agriculture like technology. So roughly around we have touched every part of Indian agriculture in paper 3 and we have done a basic level of answer writing for our Indian agriculture portion. So today is the last topic and then we will be starting with a different topic from tomorrow onwards. So let's start. So if you look at today is day 16 and we have taken the last portion from Indian agriculture, that is food processing sector. Now if we talk about food processing sector, first we will see what is the modus operandi or the model which is being taken or being promoted by the government of India in terms of food processing sector in India. So it is like this. So the government is actually promoting the food processing sector in India by the inclusion of this mega food park scheme, and this mega food park scheme is based on the hub and spoke model. So if you talk about hub and spoke model, this is our hub and these are the various spokes. Then these are the further spokes of these hubs. So this is hub for these spokes and this is hub for these spokes. Okay, so if you talk about the description of this scheme, we have what at the first level, level 1, there are group of farmers, there is self-help groups and there are farmers, and also there are cooperatives, and these cooperatives will also be supplying the raw materials they have produced over their fields to whom? To these collection centers. So these collection centers will be the first point of aggregation of the agriculture produce or the other commodities which are being produced by these groups, and they may be individual farmers as well. So these collection centers are the aggregation points. This is the first level aggregation point, and then this collection centers produce and the output will then be put forward to the primary processing centers. So these are P1, P2, P3 until Pn. So these are primary processing centers. Here what happens is, here pre-cooling, grading, sorting, waxing, packing, temporary storage, supply to CPNCs and markets are done. So an intermediate level of work is being performed at these primary processing centers. Intermediate level of work. Then after that the produce or the output of these primary processing center is then finally being carried forward to these major hubs, and these major hubs are our mega food parks being promoted by the government, and various tax incentives and tax benefits are being provided to these mega food parks. Okay, and here the main value addition, okay, in the agriculture commodities is being done in the entire supply chain. So if you talk about, if we can break this part into two parts, this part is our upstream. This part is our upstream requirement roughly, and from here till the end point, if you can make it forward, wholesalers will also come here, then retailers will come there, and then finally the food is being put forward to the customers. So if you take all these things till retailers, this is our downstream requirements, and the entire mechanism from the starting of the upstream requirements till the ending of the downstream requirement is called our supply chain, okay, or agriculture supply chain. So this is a basic model. Okay, why I am discussing this? Because in food processing sector we often term
heard these terms like upstream requirements, downstream requirements, then there is forward and backward linkages. So these are important things and we need to know that where they start and where they end. And also the question we have taken today is based on these terminologies. So अगर इनको और डेप्थ में देखें हम तो क्या इसमें प्रोसेसेस होते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं इसको. तो कंसेप्ट बिल्डिंग है नेक्स्ट स्लाइड. अब इसमें अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है. हमने देखा अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है और किस लेवल तक होती है. तो अगर अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें मेजरली क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स. ठीक है. देन देर इज़ ग्रेडिंग, देन देर इज़ ट्रांसपोर्टेशन. वी नो द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फार्म्स टू द कलेक्शन सेंटर्स और टू द प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स. ठीक है. हो सकता है किसी एरियाज़ के अंदर क्या है कि देर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ दीज कलेक्शन सेंटर्स एंड द फार्मर्स आर इन क्लोज विसिनिटी टू दीज प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स. तो वहाँ पर क्या डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर हो जाएगा, फ्रॉम फार्मर ग्रुप्स और कोऑपरेटिव्स से डायरेक्टली कहाँ हो जाएगा, प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स पे. ठीक है. सो ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, देन देर इज स्टोरेज in the collection centers, then there is quarantine. So these are our activities are being undertaken in the upstream requirements. If you talk about downstream requirements, what we have is we have blending. ठीक है. Blending is being done to ensure the quality control. Then we have mainly the quality control processes are being done here. Then if you talk about packaging, then if you talk about marketing, ठीक है, एंड देन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर ऑल्सो इन दिस लूप. ठीक है. तो ये होती हैं अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स किसकी, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, और कुछ होती हैं डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स. एंड दीज बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज और फॉर्म द सप्लाई चेन. अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, तो एक हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ मैंगो डेरिवेटिव कंपनी. ठीक है. एक मैंगो डेरिवेटिव कंपनी है. ठीक है. विच इज़ इन्वॉल्व इनटू मेकिंग दिस मैंगो काइंड ऑफ जूसेस. ठीक है. तो अब ये कैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स के अंदर इसका पार्ट रहेगा. तो इसकी अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी. फॉर इट्स अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स इट इज़ नीड टू प्रोक्योर मैंगोज फ्रॉम फार्मर्स. दिस विल बी इट्स अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट. देन ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट दीज मैंगोज. ठीक है. फ्रॉम कोल्ड स्टोरेजेस, वाया कोल्ड स्टोरेजेस. ठीक है. टू फैक्ट्रीज जहाँ पर ये क्या प्रोसेसिंग होगी इनकी बाद में, एंड पैकेजिंग जो बेसिक पैकेजिंग होगी एक फर्स्ट लेवल की. ठीक है. तो ये तो क्या हो जाएगी इस मैंगो डेरिवेटिव कंपनी की क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट. अब डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट की बात करें अगर हम इसी मैंगो कंपनी की, तो डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं. इट कैन बी मार्केटिंग. ठीक है. जो भी हमारे पास क्या है प्रोसेसिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे इस मैंगो, उसका क्या है कि फर्दर प्रोसेसिंग होगी. अदर क्या है डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स में क्या है कि वो डिफरेंशिएट होगा. इट कैन बी कैंडी बार, इट कैन बी जूस आइटम रिलेटेड थिंग, स्लाइस. ठीक है. काइंड ऑफ स्टेप. सो मार्केटिंग होगी वहाँ पर. देन ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर कहाँ से, फैक्ट्रीज से मार्केट में. ठीक है. फ्रॉम फैक्ट्रीज टू मार्केट्स. देन देर इज़ रेफ्रिजरेशन यूनिट्स अवेलेबल इन द मॉल्स एंड द रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर्स. और बहुत सारी प्रोसेसिंग वाले इश्यूज़ भी क्या होंगे इसके डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में होंगे. तो ये पूरा का पूरा क्या है कि एक मैंगो डेरिवेटिव कंपनी जो है उसकी सप्लाई चेन को कंस्टिट्यूट करेगा. आई होप इट इज़ क्लियर. अब अगर ये सप्लाई चेन को मैनेज करना है, इफ़ यू नीड टू मैनेज दिस सप्लाई चेन, देन देर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देयर दैट इज़ कॉल्ड एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. ठीक है. तो ये सप्लाई चेन को अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करना इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. ठीक है. दैट इज़ व्हेन अ कंपनी ट्राइज टू इंटीग्रेट इट्स ऑपरेशंस. ठीक है. विद अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स विद द एम ऑफ लोअरिंग कॉस्ट. ठीक है. अगर क्या है कंपनी जो अपनी अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स की क्या है कॉस्ट को लोअर करना चाहेगी. ठीक है. एक स्टडी सप्लाई को इंश्योर करना चाहिए. ठीक है. दैट इज़ इट विल ट्राई टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग एग्रीमेंट विद द फार्मर्स कि वहाँ पर क्या है कि उनको दिस मनी अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ मैंगो शुड बी डन विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ. तो अगर क्या है कि वहाँ पर स्टडी सप्लाई को इंश्योर कर सकती है, कॉस्ट को लोअर कर सकती है, दैट इज़, और क्या है कि यूनिफॉर्म क्वालिटी को इंश्योर कर सकती है. ठीक है. तो ओनली सर्टेन
quality of mangoes are being taken by the farmer on a contractual basis from a group of farmers or cooperatives at a lower cost, then it is doing what? It is actually ensuring a backward linkage in its supply chain. ठीक है, तो इसकी सप्लाई चेन थी पहले तो जेनरिक सी, और उसमें इसने क्या मैनेजमेंट कर लिया वाया बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज. सिमिलरली क्या हो सकता है, फॉरवर्ड लिंकेज क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो मैंगो डेरिवेटिव कंपनी, इट इज़ डायरेक्टली सेलिंग टू व्हाट, द MNC सुपर मार्केट्स. ठीक है, सुपर मार्केट जाइंट्स लाइक बिग बाज़ार. ठीक है, देन वी हैव रिलायंस स्मार्ट. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली क्या है कि फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू क्या है कि मार्केटिंग को पहले ही क्या इंश्योर कर ले कि इट्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड एंड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऑन दीज सेलेक्टेड स्टोर्स इन द कंट्री. ठीक है, तो फॉरवर्ड लिंकेजेस हो गया. तो सप्लाई चेन इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बीन डन बाय इंटीग्रेटिंग द होल प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन बाय ensuring efficient and cost optimized backward and forward linkages. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं. द क्वेश्चन इज, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है बिकॉज आई नीड टू डिस्कस द कंसेप्ट विद यू, सो इट्स अ 10 मार्कर. ठीक है, और 15 मार्कर में भी आ सकता है, नॉट एन इशू. तो इट इज़ आस्किंग व्हाट आर द अपस्ट्रीम चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था. ठीक है, फार्मर्स ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि क्या है कि अपनी प्रोड्यूस देंगे कलेक्शन सेंटर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, फार्मर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, और कॉपरेटिव्स भी हो सकता है विच इज़ ऑल्सो गिविंग इट्स प्रोड्यूस टू द कलेक्शन सेंटर्स और टूवर्ड्स द प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स विच इज़ देन बीन ट्रांसफर टू द मेगा फूड पार्क्स. तो अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द अपस्ट्रीम चैलेंजेस, कौन कौन से ऐसे अपस्ट्रीम चैलेंजेस हैं जो कि फेस्ड करते हैं कॉपरेटिव मॉडल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस देम. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 क्वेश्चन टैग्स हैं. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट 2 क्वेश्चन टैग्स आर देयर, फर्स्ट इज व्हाट एंड सेकंड इज सजेस्ट. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन टैग हैं एंड दीज क्वेश्चन टैग्स बोथ आर लाइट कीवर्ड्स और लाइट डायरेक्टिव्स. ठीक है, तो वी डोंट नीड टू गिव मच एम्फेसिस. ठीक है, ऑन बोथ. ठीक है, तो रफली अगर 10 मार्कर हैं तो 50% मार्क वी विल बी अलॉटिंग टू दिस and 50% marks will be allotting to this. ठीक है, then first it is asking the upstream challenges. See, it is specifically asking upstream challenges, so we don't need to talk about the downstream challenges. First thing is clear, and then it is suggesting the measures for the same. अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन अगेन वी विल बी गोइंग विद द 2 फिलोसफीज, व्हाट एंड वाई. ठीक है, व्हाट में स्टैटिक ले सकता हूँ कि व्हाट आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और व्हाट इज़ द कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बट आई गेस कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा एग्जामिनर्स की आईज के अंदर वो. तो बेटर वी कैन राइट अ वाई वाला इंट्रोडक्शन दैट इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. ठीक है, सो दैट इज़ क्लियर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम करंट अफेयर वी कैन टेक अ स्टैटिस्टिक्स विच वॉज देयर इन न्यूज़, वेरी मच इन न्यूज़. तो हम क्या ले सकते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स जो कि आपने प्रिपेयर करी है ऑन द टॉपिक्स ऑफ योर मेन्स. ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि इंडिया is the world's second largest producer of fruits and vegetables. ठीक है, बट ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर चाइना, बट hardly 2% of the produce is processed. ठीक है, so it is second largest in terms of the production of fruits and vegetables, but in terms of the processing of fruits and vegetables it is actually doing at a very minimal percentage, that is 2%. ठीक है, so only 2% of the produce is being processed or it is subjected to processing, so it is very very less. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल सा कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, बट हार्डली 2% ऑफ द प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड. ठीक है, दिस इज लार्जली ड्यू टू द structural weaknesses in the upstream and downstream requirements ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. ठीक है, तो हमने ये किया है, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दे दिए हैं, सब्सटेंशिएट कर दिया हमने हमारे क्वेश्चन को. एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव डन, वी हैव इन्वोक्ड द कीवर्ड विच वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इन आवर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि द
पर्सन इज़ नॉट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, बिकॉज हमने क्या कि इंट्रोडक्शन में हमारा कीवर्ड को इन्वोक भी कर दिया और उस कीवर्ड को सब्सटेंशिएट करने के लिए वी हैव गिवन अ गुड एंड अ ईजी स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो जो ये इशू हो रहा है कि ओनली हार्डली 2% ऑफ प्रोड्यूस इज बीइंग प्रोसेस्ड, इट इज़ मेजरली ड्यू टू द स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस फेस्ड क्या हैं. सिंपल सा बात है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द अपस्ट्रीम चैलेंजेस क्या क्या हैं. तो फर्स्ट इसमें क्या आता है, लो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब लो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे हैं कि इंडिया में क्या है कि बहुत सारे क्रॉप्स क्या हैं, सीजनल हैं, बहुत सारे क्रॉप्स सीजनल हैं यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, देयरफॉर इट कॉजेज अ डिले. ठीक है, बिकॉज सम मंथ्स ऑफ द ईयर आर नॉट द प्रोड्यूसिंग ईयर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मंथ्स ऑफ द क्रॉप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप. सिमिलरली एट द सेम टाइम मैनी क्रॉप्स, ठीक है, मैनी क्रॉप्स आर बीन कल्टिवेटेड, ठीक है, फॉर सेल्फ यूज़. ठीक है, दैट इज़, ये तो हमारा क्या है, टिपिकल फीचर है किस चीज़ का, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का. ठीक है, स्टिल इंडिया में क्या है कि लार्ज स्केल लेवल पे क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ बीन प्रोड्यूस्ड. अभी भी क्या है कि हम उस लेवल ऑफ कमर्शलाइज्ड फार्मिंग पे नहीं आ पाए हैं. देयरफॉर मैनी क्रॉप्स आर बीन कल्टिवेटेड फॉर सेल्फ यूज़. ठीक है, इसका क्रिटिकल एग्जांपल क्या हो सकता है कि सर्टेन क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स आर मेनली ग्रोन बाय स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स एंड they are actually using them for their own need. So subsistence farming is a major cause in India which is giving a low availability of the raw materials. ठीक है, because these raw materials will then be what processed in these food processing industries. तो availability ही low है किसकी, raw materials की, because first they are seasonal, second certain crops are cultivated for self use because of the nature of subsistence farming in India. ठीक है, then many crops are dependent on the vagaries of monsoon. ठीक है, सो इफ़ देर इज़ अ गुड मानसून सीजन देर इज़ हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज पर्टिकुलर क्रॉप्स, बट इन द वीकर और द इन द अर्ली ईयर्स, ठीक है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज क्रॉप्स विल बी लेसेंड. तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, वी हैव डोंट हैव द सफिशिएंट इनपुट फॉर दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड है देन देर इज़ लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो मैनी स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो बहुत सारे क्या है कि इसमें स्मॉल स्केल, हमें पता ही है MSME, तो MSME के अंदर देर इज़ ऑल्सो MSMEs फॉर व्हाट, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. तो जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर एक्चुअली फेसिंग शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट एंड चीप कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ठीक है, एज रिजल्ट क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स को स्टोरेज करने के लिए ऑप्टिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दैट इज़ नॉट देयर, सो देर इज़ ऑफन मोर प्रोननेस टू द वेस्टेजेस. ठीक है, एंड देर आर इंक्रीज फूड वेस्टेज एंड लॉस. द स्कैरिसिटी ऑफ स्पेस इज ऑल्सो अ इशू इन दिस रिगार्ड. ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट देर इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट कनेक्टिविटी. वी नो दैट ट्रांसपोर्ट टेशन कनेक्टिविटी इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, देन ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट कि इन हिली एरियाज, ठीक है, मेनली मोर हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज बीइंग प्रमोटेड, but we know that hilly areas are having weak transportation facilities both in terms of roads, railways and airways. ठीक है, तो this is also posing a problem. So hilly areas के अंदर क्या है, especially then there is less percentage of food processing industries being located nearby hilly areas, although they are good for horticultural aspects in the agriculture. ठीक है, एज रिजल्ट क्या होता है, जो पेरिशेबल्स होते हैं, ठीक है, विदाउट दिस एडिक्वेट कनेक्टिविटी, ठीक है, तो पेरिशेबल्स जो हैं दे आर ऑफन अगेन प्रोन टू द वेस्टेजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. पेरिशेबल्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस. ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट इफ देर इज़ अ स्ट्रेट रोड इट विल रफली टेक अ कमोडिटी टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, in 1 hour for a particular distance. This particular same distance will be traveled in hilly areas. ठीक है, let's suppose the distance was same but it was a hilly area, so it takes around 5 hours. ठीक है, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो वहाँ पर क्या है, देर इज़ एन इशू फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड देयर. तो वहाँ की जो अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट है उन लोकेशंस पे जो फूड्स
प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या है कि अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या हैम्पर हो जाती हैं. देन देयर अदर प्रोसेसेस. अब अदर प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि देयर इज़ पुअर यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस. ठीक है, जो फार्म प्रोड्यूस है दैट इज़ नॉट ऑफ हाई यील्ड. ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है, जो यील्ड हाई नहीं होगी तो क्या अगेन देयर विल बी लेस ऑफ द what again leave less of the raw materials. Especially there is increasing land degradation. ठीक है, स्पेशली इन द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट एरियाज. अब ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट्स के अंदर क्या है कि देर इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स. तो वहाँ की जो लैंड की जो फर्टिलिटी दैट हैज़ बीन रिड्यूस ड्रास्टिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. तो वहाँ पर ये भी दिक्कत है, तो इसलिए फार्म यील्ड क्या है कि हैज़ बॉट सब्सटेंशियली डाउन. ठीक है, देन देर इज स्टिल प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग. ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, सब्सिस्टेंस है और इसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग. ठीक है, देन देर आर नो कंट्रोल ऑन क्वालिटी. ठीक है, नो कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ इनपुट्स. ठीक है, अगर आप क्या है कि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करोगे फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ योर प्रोड्यूस, देन देयर इज़ अ चांस दैट योर एग्रीकल्चर कमोडिटी विल बी ऑफ हाई टॉक्सिसिटी. ठीक है, तो उसमें क्या है केमिकल्स के कारण क्या हाई टॉक्सिसिटी आ सकती है. एंड देन इट शुड बी what rejected by the food processing centers. ठीक है, because it will not be have an acceptance in the international and the domestic markets. ठीक है, तो there is no control on quality of inputs and lack of finance. ठीक है, lack of finance. Now if you talk about one more point in this कि low availability of raw materials, इसके हम यही बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट मेजर्स लाइक MSP. ठीक है, तो MSP होती तो क्या है कि मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज is being transported to the Food Corporation of India. Therefore, the private players involved in these food processing industries are not get the adequate raw materials for the processing. ठीक है, तो these are the various issues. इसमें और भी लिख सकते हो कि there are what human errors. ठीक है, use of old technologies. Then it is not up to the mark as compared to the competition in the market. तो अगर क्या है कि competitive way में अगर हम फार्म ग्रोथ या फार्म यील्ड को इंश्योर नहीं करेंगे तो क्या है कि आपकी प्रोड्यूस क्या है कि विल बी not in a competitive pricing as compared to the other players in the market or other international players. So export competitiveness भी क्या उसमें reduce हो जाएगी. ठीक है, तो these are the what of the upstream requirements or challenges in the food processing industries. Then if you talk about the measures, it is also saying suggest. Then we need to just mention these things. So if we talk about the measures, we have certain measures. That is first is integrated approach. ठीक है, तो हमने पढ़ा है अभी जब हमने कंसेप्ट बिल्ड किया था, दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए व्हाट वी डू इज़ वी एंश्योर व्हाट एफिशिएंट एंड रोबस्ट व्हाट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. ठीक है, हमने उसमें देखा किस तरीके से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें यूनिफॉर्म सप्लाई एंड क्वालिटी को हम क्या है कि इंश्योर कर सकते हैं. सो देर इज़ अ नीड ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विद अ फोकस ऑन स्टैब्लिशिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस विच आर क्रूशल फॉर स्केलिंग अप द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द थिंग. तो अगर यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेज एफिशिएंट होगा देन इट विल डू व्हाट, इट विल इंक्रीज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, ये क्लियर हो गया. देन देर इज़ अ नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे फार्म ऑर्डिनेंसेज आए हैं हमें, जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था इसमें एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसमें फार्म ऑर्डिनेंसेज डिस्कस किए थे. तो हमने उसमें देखा है कि देर इज़ अ प्रोविजन फॉर व्हाट अनेबलिंग अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग. अगर कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग होगी तो देन क्या है कि मैनी new and international food processing industries like Coca-Cola, ITC will be more what interested in taking the businesses, greenfield businesses in India. ठीक है, because if they have the contractual farming with the farmers then they get the optimum quality of agriculture raw material and also they can have a steady supply of that. अगर contractual farming को क्या है कि government promote करेगी then also in respect of this the model लैंड लीजिंग जो लॉ लेके आई है, कौन लेके आई है, नीति आयोग, विल ऑल्सो बी अ गेम चेंजर. ठीक है, तो हमें सिर्फ मेंशन करना है, इसको एलैबोरेट नहीं करना है कि मॉडल लैंड लीजिंग लॉ क्या होता है. वी ऑल नो दैट. हमें एलैबोरेट नहीं करना है कि फार्म ऑर्डिनेंसेस कौन से हैं, बस वी कैन जस्ट राइट इन अ मेंशनिंग फॉर्म एंड वी कैन सी
and show the output of it and how this will be addressing the upstream requirement and the challenges in it. Then inclusion of private sector. तो अगेन फार्म ऑर्डिनेंसेस 2020 के अंदर क्या है कि हमने देखा है देयर विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री ट्रेडिंग एरियाज, ठीक है, एंड दीज फ्री ट्रेडिंग एरियाज बेस्ड ऑन फ्री मार्केट अप्रोच विल इन्वाइट ऑल प्राइवेट सेक्टर्स एंड दीज प्राइवेट सेक्टर विल डू व्हाट, दे विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दे विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन व्हाट एंटायर एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, देन उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, गुड क्वालिटी इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा हो जाएगा. देन इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल ब्रिंग वॉट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल चेंज द फेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम. सो इंक्लूजन होना चाहिए किसमें, अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स के अंदर, किसमें, प्राइवेट सेक्टर का. अब वो किससे पॉसिबल हो जाएगा, फार्म ऑर्डिनेंसेस 2020 से. देन इफ़ यू टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, तो उसके अंदर क्या है कि देयर इज़ अ नीड फॉर मॉडिफिकेशन इन द मेगा फूड पार्क स्कीम. अब इसमें क्या इशू है कि जो मेगा फूड पार्क स्कीम है इट इज़ हैविंग एन इशू दैट अ पर्सन, ठीक है, और अ फर्म हु इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लेट्स से 10 crores can establish a food processing center under the mega food park scheme, ठीक है, but it has been seen that this 10 crore amount is a very minuscule amount, ठीक है, for ensuring the adequate infrastructure and upgradation of technologies, ठीक है, especially with respect to what upstream requirements, ठीक है. तो there is a school of thought that there should be a modification in the mega food park scheme and this limit of 10 crores which has been capped to 10 crores इसको increase करना चाहिए ताकि जो भी private players आएँ they should be coming with more investment in their hand, ठीक है, ये clear हो गया. Then और भी सारे हैं others के अंदर you can write that we need to ensure uniform implementation of APMC एक्ट, ठीक है. अब APMC एक्ट का अगर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो व्हाट क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है. तो इट्स अ PPP मॉडल पे वर्क करेंगे. तो देन ऑल्सो इट कैन बी अ कोलैबोरेटिव मॉडल बिटवीन बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. तो वहाँ पर क्या है कि अदर जो भी इशू चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हार्मोनाइज हो जाएंगे और वो क्या है कि एक प्रॉपर वे में चैनलाइज हो जाएंगे. देन देयर इज नीड टू रिड्यूस व्हाट GST टैक्स रेट्स applicable on the various upstream requirement stages, ठीक है. तो upstream requirement stages की जो various levels हैं उस पर जो GST tax rate है that should be reduced and that should be more farmer friendly, ठीक है. Then this last thing which we write in all our answers, ठीक है, when we don't have any other idea, that is research and development. So research and development needs to be promoted, ठीक है. देयर इज़ अ नीड टू एनकरेज व्हाट एकेडमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेज, ताकि किस तरीके से जो हमारे पास अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट की स्टेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और कैसे वो जो बैकवर्ड लिंकेज है उसको एंश्योर किया जा सके, ठीक है. तो ये हम क्या कि सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं. बहुत ही क्या है कि लाइट कीवर्ड्स हैं, व्हाट और सजेस्ट, तो हमें सिर्फ मेंशन करना है, बट जब मेंशन करेंगे तो वी विल बी यूजिंग क्या है कि गुड कीवर्ड्स. And in conclusion what we can write that there is an urgent need to, ठीक है, तो एक ऑप्टिमिस्टिक दे सकते हैं, अर्जेंट नीड टू मॉडर्नाइज या फिर टू गिव, अर्जेंट नीड टू गिव मोर पुश इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि संपदा, ठीक है, संपदा योजना, ठीक है. तो हमने क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का एस्पेक्ट भी दे दिया हमारे कंक्लूजन में. इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी क्या है कि एक स्टैटिस्टिक्स दे चुके हैं, ठीक है, ठीक है. टू मॉडर्नाइज व्हाट इट विल डू इज़, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे संपदा योजना के तो इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्या, टू मॉडर्नाइज
to modernize, to upgrade, and to strengthen what the upstream requirements of the agri supply chain. ठीक है, so what we are doing in our answer writing is that we are not drifting our focus from the primary keyword mentioned in the question, and that is upstream. हमने इंट्रोडक्शन में भी हमारा इंट्रोडक्शन लिखते वक्त वी हैव यूज द कीवर्ड अपस्ट्रीम. मेन बॉडी के अंदर वी हैव यूज्ड मेनी टाइम्स द कीवर्ड अपस्ट्रीम, एंड देन ऑल्सो इन द कंक्लूजन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मोल्ड द संपदा योजना ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू द अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स. तो एक फोकस रहेगा एग्जामिनर का कि ही हैज़ एक्चुअली written the answer in a way the question has been asked, that is with the primary keyword called as upstream challenges. And we have given statistics, we have given government projects, then we have given many examples while mentioning our both challenges as well as measures. So this was a discussion for today. I hope you like it. If you like it, kindly hit the like button, comment on what topics we can take next, and also you can join and subscribe the YouTube channel of IAS Network and also Telegram channel of IAS Network. Thank you and have a nice day.